Student, good morning. How are you? I hope you all are well. Last class we discuss IMF. हमने लास्ट क्लास में बात करी थी IMF के बारे में. आज हम पढ़ेंगे IBRD, ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक. कि वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत कौन कौन से समूह के बैंक आते हैं, इसके बारे में आज हम संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे. तो बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शंस की. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पुनर्निर्माण विकास बैंक कंसीव्ड हुआ था ये 1944 में. इसने ऑपरेशन अपना स्टार्ट किया था जून 1946 में, जिसमें इसके फर्स्ट बोरोवर हैं फ्रांस. इसके मेंबर 189 कंट्रीज़ हैं एंड इट्स हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट. His managing director is Jim Young Kim, and it is created through Bretton Woods Conference. I told you last class there are two organizations created through Bretton Woods Conference. First is IMF, and second one is World Bank, which is also known as International Bank for Reconstruction and Development. Now, International Bank for Reconstructions is an institutions basically who offer loan to middle income developing कंट्रीज. वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को लोन दिया जाता है ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके. द IBRD इज़ द फाइव मेंबर इंस्टीट्यूशंस. IBRD के अंतर्गत 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जिसका हेडक्वार्टर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट. 1944 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था. इसको इस्टेब्लिश करने का मुख्य उद्देश्य ये था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनकी जो इकोनॉमी थी वो एक तरीके से त्राही त्राही हो गई थी. जो आर्थिक परिस्थिति थी उनकी बहुत ख़राब हो गई थी. तो IBRD के माध्यम से, मैंने आपको बताया कि इसका नाम ही पुनर्निर्माण बैंक है, तो यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उनकी अर्थव्यवस्था को दोबारा रिबिल्ड करने में IBRD का बहुत बड़ा रोल है. The IBRD and its constitutional lending arms, the International Development Association, are collectively known as the World Bank. IBRD के अंतर्गत पहला जो बैंक आता है इसके अंदर वो आता है IDA. तो IDA और IBRD कलेक्टिवली दोनों बैंकों को हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं. IBRD is also known as World Bank. It provides long-term assistance to developing countries. Through Bretton Woods Agreement, it is created. Its basic purpose is to provide credit, and the main objective of IBRD to provide loan facility to middle income developing countries so that they can remove the poverty. Next, we talk about organization and structures. See, under World Bank Group, we having a two organizations. Under World Bank, we having basically two organizations. First is IBRD, which is also known as World Bank, and second one is IDA, who's known as International Development Associations. When we talk about other organizations, IFSC, International Finance Corporation, MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, and last one is ICSID. ICSD stand for International Center for Settlement of Investment Dispute. Now we talk about organization of World Bank. See, there are 5 person involvement. First, we call Board of Governor. As we know, in India, we having a bank called RBI. In RBI, we having a governor. Then Board of Governor also constitute. So in World Bank, first body is basically Board of Governor, supreme policy making body, one governor and one alternative governor for 5 years. बाय ईच कंट्री मीट एनुअली. तो बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा ही
पॉलिसीज़ बनाई जाती है और उस बोर्ड ऑफ गवर्नर का जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए होता है और 5 साल में वो मिलते हैं एक बार, 1 साल में एक बार। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 21 मेंबर्स हैं, जिसमें से 55 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं परमानेंट बेस मेंबर के बेसिस पे 2 साल के लिए। दैट्स ऑल आर अपॉइंटेड बाय रिमेनिंग कंट्री। जो 55 मेंबर हैं वो रिमेनिंग कंट्री के द्वारा चुने जाते हैं, जिनके लिए कंपलसरी होता है कि महीने में वो एक बार मीटिंग करेंगे। नेक्स्ट आती है एडवाइजरी काउंसिल। एडवाइजरी काउंसिल बेसिकली गिव दी advice to board of governors, which consist of 7 members. Fourth is loan committee. Loan committee constitutes the members who basically having their own policy to provide loans. These committee basically decide the terms and conditions of loans. Last one is president. The board of executive director constitute 21 members. 6 of them are appointed by 6 largest shareholder. So executive director होते हैं उसमें 21 मेंबर होते हैं, जिन 6 मेंबरों को लार्जेस्ट शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसमें यूएसए, यूके, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, जापान और इंडिया है, और रेस्ट जो 15 मेंबर हैं उन्हें रिमेनिंग कंट्री के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ईच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होल्ड वोटिंग पावर। हर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास वोटिंग पावर होती है जो उनकी गवर्नमेंट के द्वारा शेयर होल्ड किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके पास पावर होती है। एंड द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और जो बोर्ड है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के, वो रेगुलरली 1 महीने में मीटिंग करते हैं बैंक की फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑथोराइज कैपिटल कितनी है हमारी वर्ल्ड बैंक की। जो इनिशियल कैपिटल है, द इनिशियल ऑथोराइज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बैंक वाज $10,000 million, which is divided is 1 lakh shares of $1 lakh each. The authorized capital of bank has been increased. बैंक की जो ऑथराइज अधिकृत पूंजी है वो समय समय पे बढ़ाई जाती है और उस पूंजी को बढ़ाने के लिए अप्रूवल दी जाती है मेंबर कंट्री के द्वारा। 2% ऑफ अलॉटेड शेयर आर रिपेड इन गोल्ड। 2% जो अलॉटेड शेयर्स होते हैं उन्हें रिपे किया जाता है गोल्ड में, यूएसडी डॉलर में, आइदर अ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। वी डिस्कस last to last class special drawing rights, which is basically a basket of currencies. Earlier 4 country currency are there. Now 5 country currency are there in SDR. Second, every member is free to repay 80% of its shares capital in own currency. जो अदर्स जो मेंबर्स हैं वो फ्री होते हैं कि वो 18% कैपिटल अपनी करेंसी में पे करेंगे, और जो रेस्ट 80% है शेयर्स डिपॉजिटेड बाय मेंबर कंट्री ओनली ऑन डिमांड ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जब डिमांड की जाती है तो रेस्ट जो पोर्शन बचता है 80% वो वर्ल्ड बैंक के मेंबर के द्वारा डिमांड पे दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम एम्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बैंक की। क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल बैंक का। पहला है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक और IBRD बेसिकली प्रोवाइड लोन टू द इकोनॉमी वेयर द वॉर टेक प्लेस। जहाँ पे युद्ध हुआ और युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था थी वो छिन्न भिन्न हो गई। इस अर्थव्यवस्था को रिबिल्ड करने के, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए IBRD के द्वारा लोन दिया जाता है, और IBRD के द्वारा बैकवर्ड कंट्रीज को भी मदद की जाती है ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, द वर्ल्ड बैंक बेसिकली एडवाइस, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो प्राइवेट इंटरप्राइज हैं उनको एडवाइस दी जाती है कि वो उस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनकरेज किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज को, दे इन्वेस्ट इन अंडर डेवलप्ड